morning student. Hello, I am Kruti Miss, your SS teacher. Today I am going to teach you history, our chapter 2 on the trail of the earliest people. Before we start our lesson, we recall our first lesson. In first lesson we study about ancient people, how they survive, how they live, how they produce their own foods. In this chapter we start how they move in a other place. So now we start our lesson. The earliest people, why were they on the move? पहले के जो लोग थे उनको मूव करने की क्या ज़रूरत हुई? We know about a people who live in the subcontinent as early as 2 million years ago. 2 million साल पहले वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाया करते थे. Today we describe them as a hunter and gatherers. वो ancient people बहुत सारे थे, hunters थे, gatherers थे, farmers थे, पर इन चैप्टर हम particularly hunter और gatherers के बारे में पढ़ेंगे. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. इनका ये जो नाम है hunter and gatherers किस हिसाब से पढ़ा कि वो they got their food के हिसाब से पढ़ा है. जैसे कि the immense variety of plants in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. सपोज उनको फूड की तो ज़रूरत है, पर उसके लिए उनको जो पर्टिकुलर जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से उनको पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा प्लांट्स ग्रो करता है. None of these things was easy to do. ये इन लोगों के लिए easy नहीं था. There are several animals that run faster than us, many that are stronger. जैसे कि ये होता है कि अगर वो कैच करते हैं एनिमल्स को, तो कई एनिमल्स होते हैं कि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनसे भी ज़्यादा होती है. तो टू हंट एनिमल्स और कैच फिशेज एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव अ लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स. If they catch the animals, they have a lots of presence of minds, alert and quick ability to hear. To collect the plant produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible. Suppose they grow some plants. Before they grow plants, they need to find out which plants or parts of plants are edible. That is can be eaten as many can be poisonous. Because क्या है कि इनमें से जो कोई प्लांट्स होते हैं वो खाने में यूज़ होते हैं और कई प्लांट जेरी भी होते हैं. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स रिपन. उसके अकॉर्डिंग सपोज उनको कोई फ्रूट ग्रो करना हो तो उनके बारे में उनको ये भी पता होना चाहिए कि इन विच फ्रूट इज ग्रोन या रिपन इन विच सीजन. They have many questions in our mind. Do you have this skill and knowledge? There are at least 4 reasons why hunter and gatherers move from place to place. यहाँ पे हमने ये बोला है कि हंटर्स और गैदरर मूव क्यों करते हैं. देर आर द 4 रीजन आर देयर. फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Suppose they live in particular place, so they would have to eaten all. तो suppose कि देखिए कि अगर वहाँ पे वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे रहेंगे तो वहाँ पे जितने प्लांट्स एनिमल्स हैं उन सबको वो खा के सब कुछ खत्म कर सकते हैं. Therefore they would have to head to go everywhere elsewhere in search of food. फिर उसके कारण उनको क्या होगा कि एक जगह पे अगर वो स्टेबल रहेंगे तो वहाँ का जो रिसोर्सेज है प्लांट्स या फूड का, अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर उनको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा. सेकंड रीजन इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस. Second, animal move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaf. That is why those who hunted them had to follow their movements. Suppose कई animals है जैसे कि deer है, wild cattle है, तो उनके लिए उनको grass और leaves की find out करने की ज़रूरत होती है. That is why those who hunted them had to follow their movements. Third reason is plants.
third, plants and trees bear a fruit in different season. We all know that कि all different plants and fruits are grow in a different season. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Suppose उनको अलग अलग तरीके के plants और fruits की ज़रूरत है, तो अलग अलग सीजन के दौरान उनको ये सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी. Fourth reason, plants and animals need water to survive. Water is found in lake, streams and river. While many rivers and lakes other are seasonal. Suppose कि अगर उनको plants grow करना है तो first most components कौन सा चाहिए होगा? water. तो water होगा तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा प्लांट. तो इसी तरह पे प्लांट वाटर कहाँ पे उनको अवेलेबल होगा? रिवर्स एंड लेक. बट कई रिवर्स ऐसी होती है कि वो सीजनली होती है, कई होती है वो ईयरली होती है. तो अदर आर सीजनल. पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. तो फिर क्या होगा? सपोज विंटर एंड समर वो ड्राई सीजन है, तो उनमें अगर उनको पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उनको वो ढूंढने के लिए अनदर सीजन अनदर प्लेस में जाना पड़ेगा. बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. रिमेंबर दे ट्रैवल ऑन फूड. अनदर रीज़न ये है कि अगर उनके रिलेटिव्स हैं, उनको वहाँ पे जाना होगा तो उनको मिलने के लिए तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा. बट ये याद रखना कि दे ट्रैवल ऑन फुट, क्योंकि वो अपने पैरों से चल के जाते थे. और अनदर टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम उस प्रकार के पीपल्स के बारे में कैसे जान पाएंगे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदरर्स मेड एंड यूज. जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, अ पर्सन हु फाइंड आउट द हिस्ट्री एंड पीपल्स हु लिव्ड इन अ पास्ट फॉर्म. सो तो क्या करते थे आर्कियोलॉजिस्ट को? उनको हंटर और गैदरर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, wood and bone, of which stone tools have survived best. तो उनको कौन सी चीज़ें मिलेंगी? जैसे कि पहले के टाइम पे जो लोग थे वो टूल्स स्टोन से बनाए हुए टूल्स यूज़ करते, या फिर वुड या बॉन से बनाए हुए. और उसमें से भी कौन सा स्टोन वाला टूल्स वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव के लिए बेस्ट है. हियर आर द पिक्चर ऑफ सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन. फर्स्ट ए वाला स्टोन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन टूल्स. बी, तो दीज वर मेड इन सेवरल थाउजेंड ईयर्स ago. And the C, तो these are made in later still. And D वाला है कि these are made about 10,000 years ago. और ये वाला जो E वाला है वो नेचुरल है, नेचुरल स्टोन है. Some uses of stone tools are given in below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could you perform using a natural paper. Give reason for your answer. यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी के तौर पे दे रही हूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंट तरीके के स्टोन हैं आपको फाइंड आउट करने हैं, तो इनमें से कौन से टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी आपको एक लिस्ट बनाने है. Some of these stones tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruits and roots. इनमें से जो कई स्टोन्स हैं उनका यूज़ मीट और बोन कट करने के लिए यूज़ होता है. कहीं होता है वो स्क्रैप बार्क, मतलब कि जो भी ट्री होता है उसकी जो छिलके होते हैं उसको कट करने के लिए ज़रूरत होती है. एंड कई चॉप द फ्रूट्स. सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स. इसमें क्या होता है कि कहीं के पास हैंडल के साथ अटैच हुआ होता है, एट ए हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक द स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड which was used as firewood. Wood was also used to make huts and animals. Another topic is choosing a place to live in. Look at the map too. सपोज यहाँ पे ये मैप देखिए, अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट. यहाँ पे जो ट्राइंगल वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन आर्कियोलॉजिस्ट ने पर्टिकुलरली फाइंड किया है कि ये यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ये जगह थी, यहाँ पे वो इनिशिएंट पीपल रहते थे. उसके अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते देती हूँ कि लुक एट द मैप टू बिलो. ऑल द प्लेसेस मार्क विथ रेड ट्राइंगल्स आर द साइट फ्रॉम विच archaeologists have find to evidence of hunter and gatherers. Only some are shown on the map. इसमें से कई थोड़े ही दिखे हुए हैं. Many sites were located near the source of water such as rivers and lake. जैसे कि मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए जो रेड ट्राइंगल किए हुए प्लेस है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि मे भी यहाँ पे हंटरर और गैदरर्स मिल सकते हैं. और उसके अलावा और कोई जो है वो रिवर बैंक के नियरज है.
As stone tools were important, people tried to find the places where good quality stone were easily available. तो क्या होता है कि stone tools भी बहुत ही important है. क्यों? क्योंकि अगर वो good quality के होंगे तो भी उसमें कोई भी work होगा वो properly होगा. Place where stone was found and where people made tools are known as the factory sites. तो factory sites किसे कहते हैं कि जहाँ पे कोई tools मिलता है और उस tool की मदद से वो कोई उसकी मदद से अगर वो कोई स्टोन से मदद से वो कोई बनाता है टूल्स तो फिर उस जगह को कहते हैं फैक्ट्री साइट. जैसे कि हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्री वर, तो आपको कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे ये फैक्ट्री साइट है. तो यूजुअली वी फाइंड द ब्लॉक ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट एंड चीप ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइट. जैसे कि आप कोई जगह पे देखो जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोन मिलते हो, बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मिलते हो, बहुत सारा बच्चा कुचा मतलब कि प्रॉपरली कट किया ना हो ऐसे स्टोन वहाँ पे अवेलेबल हो तो उस साइट को हम फैक्ट्री साइट कह सकते हैं. समटाइम्स पीपल लिव हियर फॉर अ लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम एंड दिस साइट्स आर कॉल्ड द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. कहीं पे क्या होता है कि अगर कोई फैक्ट्री का वर्क चल रहा होता है तो उसमें लेबरर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे लॉन्ग टाइम पे पीपल रहते तो उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव विच यू ऑफ टर्म्स वुड यू चूज. अगर आपको इनमें से कोई और जगह पे रहने को बोला तो इनमें से आप कौन सी जगह चूज करोगे. फर्स्ट है हैबिटेशन, सेकंड है फैक्ट्री, अनदर है हैबिटेशन कम फैक्ट्री एंड फोर्थ वाला है एनी अदर. इस वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे मेकिंग स्टोन टूल्स. तो स्टोन टूल्स कैसे मेक होता है. स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स. तो स्टोन टूल्स होता है वो प्रॉपर 2 टेक्निक्स है उसकी मदद से बनाया जाता है. फर्स्ट है द फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन ऑन स्टोन. ये वाला फर्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन. हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड. अनदर स्टोन विच वॉज यूज एन हार्मर वॉज हेल्ड इन द other hand and the second stone was used to strike off flags from the first till the required shape was obtained. यहाँ पे क्या है कि पहले एक व्यक्ति होता है एक स्टोन लेता है फिर दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन होता है उन दोनों को आपस में जोड़ के फिर उसके ऊपर स्टोन रख के एक प्रॉपर स्टोन टूल्स बनाते हैं. सेकंड है टेक्निक के प्रेशर फ्लैकिंग. हियर द कोर वॉज प्लेस ऑन अ फर्म सरफेस. फर्म सरफेस मतलब कि उसमें ये रॉ मटेरियल कच्चा बना हुआ होता है. द हार्मर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीसेस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लैग्स दैट कुड बी शेप इनटू टूल्स. देर आर अनदर यूज ऑफ स्टोन फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. पहले के टाइम पे एनिशियंट पीपल क्या कहते हैं जब फायर डिस्क्राइब नहीं हुआ था उस टाइम पे वो यूजेस ऑफ स्टोन दे फाइंड आउट अबाउट द फायर. फाइंड द कोरोनल केव्स ऑन मैप 2 ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर. जो अभी मैंने आपको मैप 2 बताया उसमें ये कोरोनल केव्स है वहाँ पे एसिस मिले हैं राख मिली है. तो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों ने फायर को कैसे प्रोड्यूस करना है कैसे यूज़ करना है वो सीख लिया होगा. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स. फायर को पता है हम बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे एनिमल्स. वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. यहाँ पे उन पहले के लोग क्या थे कि किस के लिए वो फायर का यूज़ करते थे तो सोर्स लाइट के लिए या फिर मीट उनको रोस्ट करना उसके लिए या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो जंगल्स में रहते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स आते तो उनको उनसे दूर करने के लिए भी वो फायर का यूज़ कर सकते हैं. व्हाट वी यूज़ फायर फॉर टुडे. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं फायर का तो वो भी आपको अपने हिसाब से फाइंड आउट करना है. Another topic is a changing environment. Around 12,000 years ago, there were a major changes in the climate of the world with a shift to relative warm condition. 12 साल पहले की बात है कि वहाँ पे क्लाइमेट में उस टाइम पे क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आए और in a many areas this led to development of grassland and this is turned
led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle in real animals that survive on grass. उसी टाइम पे जब देखा तो ये फाइंड आउट हुआ तो वो बहुत सारे एनिमल्स के भी नंबर्स भी फाइंड आउट हुए, जैसे कि डियर है, एंटेलोप है, गॉट है, तो उसे ये पता चला कि दे एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास. Those who hunted these animals now follow them, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. जो एनिमल्स पे जो हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलो देम. अभी जो ये व्यक्ति को हमें फॉलो करना है कि जो एनिमल्स का हंटेड मतलब शिकार करते हैं, अब हमको उनकी हैबिट, फूड हैबिट और वो कैसे ब्रीडिंग में मतलब रहते हैं वो सब फाइंड आउट करना है. इट इज़ लाइक दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हेडिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ. वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि एनिमल्स का ये जो भी प्रोड्यूसिंग वगैरह था वो खुद ही करते थे. फिशिंग ऑल्सो बिकम अ इम्पोर्टेंट. उनके टाइम पे फिशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस. ये भी अभी एक टाइम आ गया था कि उस टाइम पे अभी ग्रेन भी बियरिंग करने का समय आ गया था, जैसे कि वेट, बैरली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे रिपन. क्या करते थे कि बच्चे हो या लेडीज़ हो या मैन हो, वो सभी इस तरीके के ग्रेन के फूड को कलेक्ट करते थे, फिर उसके बारे में जानते थे, उनके बारे में वो कैसे पकते, कैसे ग्रो होते, वो सब कुछ उसके बारे में सोचते थे. एंड दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ देयर ओन. और यही उनकी एबिलिटी के कारण एक दिन उनको अबाउट ग्रोइंग मतलब कि प्लांट्स कैसे ग्रो होता है खुद से वो उनको नॉलेज आ गई. ये सपोज देर आर द 4 different parts in earliest time, names and date. Archaeologists have given a lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period of Paleolithic. This come from 2 Greek words. It means कि जो पहला वाला पार्ट पीरियड है वो पैलेओलिथिक है. इसका ये पैलेओलिथिक इसी वजह से कहा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके बारे में स्टडी की है और हमें इनके बारे में बताया है. और दूसरा पार्ट है मेसोलिथिक. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago टिल अबाउट 10,000 years ago इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड. दूसरा वाला पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड, जो 12 साल पहले मैंने अभी आपको पढ़ा है कि देर आर मैनी सेवरल चेंजेस इन क्लाइमेट, सो दिस पीरियड्स आर कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. You will be learning about the Neolithic in chapter 3. उसके बाद वाला जो तीसरा पार्ट है अगो 10,000 years ago, उसके वो पार्ट है Neolithic और उसके बारे में हम चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे. We have also mentioned the name of stone places. You will find the name of many more places in later chapter. Very often we use the present day names of the place where people live in the past because we do not know what they call them. इसके बारे में क्या है कि हमने बहुत सारे यहाँ पे एजेस के बारे में बताया है, पर नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में हम डिस्क्राइबली पढ़ेंगे कि वो कैसे रहते, कहाँ रहते, उस प्रकार के पीपल्स को क्या कहते एट्सेट्रा. Our another topic is रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग पहले के इनिशियल पीपल थे वो रॉक पे पेंटिंग करते थे, तो उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स. पहले के टाइम के पीपल क्या थे कि ज़्यादातर वो केव्स में ही रहते थे, तो वहाँ पे वो जो स्टोन होता था, वहाँ पे रॉक होता था, उनके ऊपर वो पेंटिंग करते थे. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश. और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, साउथर्न उत्तर प्रदेश की जो केव्स है वहाँ पे उसके सोर्सेज हमें मिले हुए हैं. दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. और वो जो पेंटिंग थी वो वाइल्ड एनिमल पे थी, पर उस पेंटिंग को देख के हमें लगता था कि उसमें बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी मतलब कि एकदम प्रॉपरली अच्छी तरह से ड्रॉ किया होता, तो उससे ये पता चलता था कि उनको ड्राइंग के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज था. We have seen that the earliest people hunted, gathered up plant
प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो गेदरर और जो प्लांट्स गेदरर थे और वो जो हंटर थे उन्होंने प्लांट भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने स्टोन बनाए, टूल्स बनाए और पेंटेड ऑन केव वॉल्स। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंड आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंट और मैन गेदर फ्रूट्स एंड नट्स। यहाँ पे हमने ये भी बोला है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई वुमेन होती है वो भी हंटेड करती है, या फिर वुमेन होती है वो भी पेंटिंग करते हैं, मैन होते हैं वो भी रॉक पेंटिंग्स करते हैं, स्टोन टूल बनाते हैं। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हाउएवर दीज आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी। हमें ये पता नहीं था कि रॉक पेंटिंग्स वुमेन करते हैं या मैन करते हैं, स्टोन टूल्स बनाते वो मैन करते कि वुमेन करते, हमारे पास वो कोई प्रॉबिलिटी पर दो पॉसिबिलिटी ज़रूर है। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों ने साथ में मिलके ही ये कुछ काम किया होगा। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय मेन एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे हमको ये नहीं पता था कि कौन सा वाला वर्क किसने किया है, तो हमारे पास बस पॉसिबिलिटी है कि ये सारे काम शायद से वुमेन ने किए होंगे, ये सारे शायद से मैन ने किए होंगे, और ये सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये डिफरेंट तरीके से हुआ होगा। तो फाइंड द हंसी ऑन अ मैप टू अ नंबर ऑफ अर्ली पैलेolithic sites were found here. At some sites a large number of tool used for all sort of activities. यहाँ पे ये कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ टूल्स होते हैं उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया गया है। वर फाउंड दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी होती है और थोड़ी बहुत साइट से रिलेटेड भी काम होता है, तो उसी वजह से उस जगह को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला गया है। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। यहाँ पे और अदर सजेशन भी है कि एविडेंस मिले हुए स्मॉल फैक्ट्री के लिए। सम ऑफ द साइट्स वेर क्लोज टू स्प्रिंग्स, मोस्ट टूल वेर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल। फाइंड अ फ्रेंड्स इन योर एटलास, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन अ फ्रांस। जो उसमें हमको मिला जाएगा कि दिस साइट वॉज डिस्कवर बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years अगो। तो ये जो फ्रांस की जो केव है उसमें ये फाइंड आउट किया गया था कि वहाँ पे पेंटिंग अवेलेबल थी, और ये उस स्कूल के 4 बच्चों ने ही 10,000 years पहले ही ये सब कुछ किया हुआ। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट द अर्लीस्ट पीपल सर्वाइव पर्सनली गैदरर and hunters. Thank you.